अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू our YouTube चैनल ट्राई बेस। आज का टॉपिक है preposition. Definition of preposition. A preposition is a small but powerful word that connect a noun or pronoun to another word in the sentence. Preposition ऐसा छोटा सा मददगार लफ्ज है जो नाउन और प्रोनाउन को हाथ पकड़कर उस जुमले के दूसरे लफ्ज के साथ मिला देता है ताकि जुमला पूरा और समझने के काबिल बन जाए। Preposition showing the relationship of place, relationship of time, relationship of direction, relationship of cause, relationship of manner, and relationship of position. Preposition is like a bridge that tells us where, when, how, or in what relation one thing stands with another. Preposition एक पुल की तरह है जो हमें बता दिए कि कहाँ, कब, कैसे या किस ताल्लुक में एक चीज दूसरी चीज के साथ खड़ी है। सुपर सिंपल फार्मूला। Preposition is equal to positioning word. Preposition tells us the position or relation of a noun or pronoun with the rest of the sentences. Preposition किसी noun और pronoun की जगह या ताल्लुक को जुमले के बाकी अल्फाज के साथ जाहिर करता है। Preposition is place. She is in the room. ये कमरे में। तो इन जो है वो preposition है and the relation of place जो है वो room है। The book is on the table. किताब मेज पर है। On जो है वो preposition है and relation of place जो है वो table है। The cat is hiding under the bed. बिल्ली बेड के नीचे छुपी हुई है। तो अंडर जो है वो है preposition and relation of place जो है वो बेड है। The picture is hanging on the wall. तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है। On preposition है और relation of place जो है वो wall है। The children are playing outside the house. बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। तो outside क्या है? Preposition. और relation of place क्या है इसके अंदर? वो है house. Relation of time. We met at 5 o'clock. हम 5 बजे मिले थे। At preposition है और relation of time जो है वो 5 o'clock। He was born in July. ये जुलाई में पैदा हुआ था। तो preposition इसके अंदर वो in है और इस जुमले के अंदर जो relation of time जो है वो जुलाई। They will come after dinner. वो रात के खाने के बाद आएंगे तो इसके अंदर preposition after है और relation of time जो है वो dinner है। I stayed awake until midnight. मैं आधी रात तक जागता रहा। इस जुमले के अंदर जो preposition है वो until है and जो relation of time है वो midnight है। She left the office before lunch. वो दिन के खाने से पहले ऑफिस से निकल चुकी थी। तो इस जुमले के अंदर जो preposition है वो before है और relation of time जो है वो lunch है। Relation of direction of movement. She is going to school. वो स्कूल जा रही है। इसके अंदर preposition जो है to है and relation of direction स्कूल है। The dog ran toward the park. Dog पार्क की जानब दौड़ा। इस जुमले के अंदर preposition toward है and relation of direction जो है वो पार्क है। He jumped into the pool. इसने पूल में छलांग लगा दी। तो preposition इस जुमले के अंदर है वो into है and the relation of direction है वो pool है। The train is going through the tunnel. रेलगाड़ी सुरंग के अंदर से गुजर रही है। तो इस जुमले के अंदर preposition जो है वो है through and relation of direction है वो tunnel है। They climb up the mountain. उन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई की। तो इस जुमले के अंदर जो preposition है वो up है and relation of direction जो है वो mountain है। Relation of cause, reason and purpose. He was fined for breaking the rules. उसे कानून तोड़ने पर जुर्माना किया गया। अब इसके अंदर जो preposition है वो for है and relation of cause जो है वो breaking rules है। She was punished because of her mistake. इसको सजा मिली इसकी गलती की वजह से। तो इसके अंदर जो preposition है वो of है and relation जो है वो है reason mistake. He died from cancer. ये कैंसर से मरा। तो इसके अंदर जो preposition है वो from है and relation जो है वो cause का है वो है कैंसर। मेज वार concealed due to rain. मेज को बारिश की वजह से मनसूख किया गया। अब इसके अंदर preposition है वो to है and जो relation of the cause है वो rain है। He succeeded through the hard work.
इसने सख्त मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल की। प्रीपोजिशन इस जुमले के अंदर वो थ्रो है, और रेशन रीजन जो है वो है हार्ड वर्क। एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रीपोजिशन, द लॉस्ट कैट एंड द प्रीपोजिशन। कैट नेम इज मिमी। अली ने देखा, द मिमी इज अंडर द बेड। वो बेड के नीचे थी लेकिन जल्दी से भाग गई। अब इसके अंदर जो प्रीपोजिशन है वो अंडर है। फिर आवाज आई, मिमी इज ऑन द सोफा। सोफे के ऊपर बैठी थी, पर फिर वहां से जंप लगाकर भाग गई। अब इसके अंदर जो प्रीपोजिशन वो ऑन है। अली ने किचन देखा, मिमी इज इन द कबर्ड। मिमी अलमारी के अंदर छुप गई थी। अब इसके अंदर जो प्रीपोजिशन वो इन है। फिर उसने गार्डन चेक किया, मिमी इज बिटवीन द टू ट्रीज। मिमी दो दरख्तों के बीच में खेलती जा रही। अब इसके अंदर जो प्रीपोजिशन है वो बिटवीन है। सडनली उसने आवाज सुनी, मिमी इज बिहाइंड द डोर। दरवाजे के पीछे से अली को देख रही थी। अब इसके अंदर जो प्रीपोजिशन है वो बिहाइंड है। और आखिरकार अली ने उसे पकड़ लिया। मिमी इज इन फ्रंट ऑफ अली नाउ स्माइलिंग। अब इसके अंदर जो प्रीपोजिशन है वो इन फ्रंट ऑफ है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक प्रीपोजिशन आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव डाउट एनी क्वेश्चन कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।